Yes, welcome back, my dear students. So, after a little long break, I'm back with the topic hydrocarbons. In fact, we had seen so far in the topic hydrocarbons, introduction and classification of hydrocarbons. Then we had seen alkanes, water alkanes, types of alkanes, then isomerism in alkane, that is what the chain isomerism we had seen, then conformation in ethane molecule. So conformational isomers, how to get those two type, Sawhorse and Newman conformation. After this brief introduction, now let us move to methods for the preparation of alkanes. And first method is from unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, we all know, carbon having double or triple bond, or hydrocarbons having double or triple bond between carbon atoms, are what we call as unsaturated hydrocarbons. And unsaturated, if there is double bond, we get alkenes, triple bond, we get alkynes. So let us take alkenes as an unsaturated hydrocarbon and try to prepare alkanes by taking these hydrocarbon. So first example, we take CH2 double bond CH2, alkene, that is ethene. Now it is an unsaturated hydrocarbon. We have to convert this into a saturated hydrocarbon. Now to convert this into saturated hydrocarbon क्या करना होगा? डबल बॉन्ड के जगह सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, और उसके लिए करना क्या होगा? हमको हाइड्रोजन गैस ऐड करनी होगी. That means we have to carry out hydrogenation, addition of hydrogen to alkene, that is ethene, and this can be done by using catalyst like platinum or palladium at room temperature, or if we use nickel as a catalyst, then we need to have high temperature and pressure, high temperature and high pressure, high temperature and high pressure. So this catalyst nickel is more convenient cost wise. So in most of the reaction, nickel, finely divided nickel as a catalyst use, but the condition we have to maintain is high temperature and high pressure. To avoid this high temperature and pressure, use platinum or palladium. But these two catalysts are very costly, so they are usually not used in the preparation of alkanes. So what we have to remember, nickel is a best catalyst cost wise. अब क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड कर दो, H2 है, एक हाइड्रोजन ये कार्बन पे चला गया, दूसरा ये वाले कार्बन पे गया, तो डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड. तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, we get ethane, a saturated hydrocarbon. So quite easy, ये सब आपको आता भी है. इनफैक्ट फिर भी एक बार और बेटा इसको पढ़ते हैं. Now take another example, CH3 CH double bond CH2. This is propene. अब वही प्रोसेस, H2 गैस, कंडीशन वही मेंटेन, क्या रहेगा? प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, RT यानी रूम टेम्परेचर, और निकल अगर है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज करना है अपने को, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. फिर से क्या होगा? एडिशन, दिस वन ऑफ द हाइड्रोजन हियर, द अदर हाइड्रोजन हियर. याद क्या रखना है? जहां अनसैचुरेशन रहेगा वहां हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए आप, बस. तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड वाला कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में. तो ये नीचे दिख रहा होगा आपको, CH3 CH2 CH3 CH3 CH
2, एक हाइड्रोजन मिल गया, सिंगल बॉन्ड CH2 का हो गया 3 फिर से, तो टोटल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन that is propane we get here. So from alkene we can prepare alkanes, that is saturated hydrocarbon. Now इसी का B part अब क्या आ जाएगा, from alkynes, तो alkynes में हम alkynes means having triple bond between carbon atom. So having triple bond between carbon atom is alkynes. Let us take example, उसमें भी same procedure, hydrogen gas in presence of nickel or platinum or palladium in proper condition. So let us take the first example of alkyne, CH triple bond CH. The compound is ethyne. Now pass hydrogen gas under the similar condition, platinum or palladium at room temperature or nickel at high temperature and pressure. So what we see here, फिर से वैसे ही ये addition of H2, यहाँ पर H2, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, ये CH2 और ये भी हो जाएगा CH2, बट नाउ ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, क्योंकि आपने एक 1 मोल ऑफ H2 इसमें ऐड किया, सो ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड एंड वी गेट द प्रोडक्ट ethene. Then but this ethene is still unsaturated. To this we can add again hydrogen atom. 1 mole of hydrogen can again be added to this ethene under the similar condition of catalyst and temperature pressure. अब क्या होगा, H2 ऐड हो गया तो यहाँ मिलेगा हमको CH3 single bond CH3 ethene. That means if we want to convert ethine into ethane, we have to carry out a 2-step hydrogenation. We can add up these two and make a single step, और करके इसको लिख, सिंगल स्टेप में क्या लिखेंगे, ये लिया हमने CH triple bond CH. Now instead of 1 mole here, 1 mole here, we take 2 moles of it, 2 moles of hydrogen together, same condition, because condition remains the same, we can use 2 mole of it. तो ये बेटा इथाइन है, हाइड्रोजन गैस 2 मोल्स पास किए, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, ये हमें पता है यहाँ पर, करेक्ट. तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, अब डायरेक्टली 2 मोल्स है तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन, करेक्ट है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब हम अल्काइन लेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड है, उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. जब अल्कीन्स लेंगे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी सफिशिएंट, क्योंकि डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है. यहाँ ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड में करना है, अगर स्टेप वाइज फॉलो करें तो ट्रिपल से डबल बॉन्ड में पहले कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और आपको ये यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा. लेकिन इसी को हमने क्या किया, अब दोनों को ऐड कर दिया, बिकॉज कंडीशन रिमेन्स द सेम, तो एक ही स्टेप में हमने इसे लिख लिया. एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये बना बेटा अपना प्रोपाइन, 3 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड. अब क्या करना होगा, ट्वाइस H2 गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम, करेक्ट है. तो अब यहाँ क्या देखेंगे हम कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर एडिशन होगा, जहाँ अनसैचुरेशन है,
बाकी तो कार्बन सैचुरेटेड है ना, ये टोटली सैचुरेटेड है, दिस टू आर अनसैचुरेटेड, हाइड्रोजन यहीं पर ऐड होगा और हमें मिलेगा CH3 CH2 CH3, that is propane again. So you can take other example of alkyne, add hydrogen gas and convert that into a saturated hydrocarbon. So quite easy method for the preparation of alkanes from unsaturated hydrocarbon. Now second method we will take, that is from alkyl halides. From alkyl halide we can prepare hydrocarbons, that is alkanes. So second method we can consider from alkyl halides. अब alkyl halides तो ये टर्म हमें पता है, alkyl halides जनरल फॉर्मूला है RX. R is alkyl group and X is halide ion. तो R is alkyl group and X is halide ion or halogen halide ion, we call it as alkyl halide. जैसे एग्जाम्पल RCH3Cl alkyl halide, C2H5Br, C3H7Cl, तो ये हो गए alkyl halide. Using these alkyl halide we will have to prepare hydrocarbon saturated, that is alkene. So keep this example in mind and now we will prepare alkanes from alkyl halide. और first method है by reduction of alkyl halides. तो alkyl halides का रिडक्शन करना है हमको और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को ध्यान में रखेंगे आप. रिड्यूसिंग एजेंट is zinc and hydrochloric acid. Zinc and hydrochloric acid is a reducing agent. It provides a hydrogen to bring about the reduction of alkyl halide into hydrocarbon saturated, that is alkane. I repeat again, this reducing agent zinc and hydrochloric acid brings about the reduction of alkyl halide into alkane by providing nascent hydrogen. Yes, तो ये reducing agent क्या provide करने वाला है हमको? Nascent hydrogen. बेटा nascent hydrogen क्या होता है? Hydrogen which is just prepared or monoatomic hydrogen is what we call as nascent hydrogen, represented hydrogen in a square bracket that represent the nascent state of hydrogen. Nascent means just produced in a very pure form but in monoatomic form. तो ये nascent hydrogen हमें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता. अब ये nascent hydrogen कैसे मिलता है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक? तो ये जिंक सॉलिड लिया आपने, इसको रिएक्ट कर दिया ट्वाइस HCl के साथ, तो जिंक मेटल है, फास्ट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 और यहाँ पर ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. So this nascent hydrogen is produced by the action of zinc and hydrochloric acid and this is used to bring about reduction of alkyl halide into alkane. देखो मैं एक ऐसी जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ये alkyl halide RX, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन दिया इसको, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसे मिला ये भी आपने समझ लिया. Now to this nascent hydrogen or rather nascent hydrogen obtained by zinc and hydrochloric acid, so क्या होगा अब यहाँ पर? सिंपल सब्स्टिट्यूशन है ना. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आई टेक बैक. क्या होगा? रिडक्शन ऑफ alkyl halide
तो यहाँ पर ये RH यानी अल्केन मिल जाएगा आपको, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अभी यहाँ पर एक X निकल गया और एक हाइड्रोजन बाकी है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? HX. HX is what? Hydrogen halide. HX is hydrogen halide. Not a big issue, है ना, बहुत इजी रिएक्शन है। तो यहाँ लिया था अल्काइल हैलाइड और उसका रिडक्शन किया नेसेंट हाइड्रोजन से, प्रोवाइडेड बाय जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको अल्केन मिल गया। अब इसका एग्जांपल बना लेते हैं हम। वी टेक हियर C2H5Cl ethyl chloride. Now bring about its reduction by using nascent hydrogen, and nascent hydrogen is obtained by zinc and hydrochloric acid. ये reagent यहाँ एरो पे लिखना essential है। अगर आपने ये reagent नहीं लिखा तो समझ लीजिए रिएक्शन जीरो। ये nascent आया कहाँ से, है ना, तो from where it has come, तो वो उसका रीजनिंग हमारे पास होना चाहिए। दैट्स वाई एरो पे Zn and HCl लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस विल बी C2H6 प्लस HCl। देखिए हाइड्रोजन हलाइड HCl और ये C2H6 क्या मिला हमको? इथेन। तो कितनी सिंपल रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड यूजिंग जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH Br CH3 CH3. This is 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane. नोमेनक्लेचर सभी को समझ रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, पेरेंट अल्केन हो गया। सेकेंड कार्बन पे ब्रोमो, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा 2-bromo 2-methyl propane. Carry out its reduction, nascent hydrogen provided by जिंक एंड HCl। देखिए हर बार मैं बोल भी रहा हूँ और उसे लिख भी रहा हूँ, है ना, तो वो हैबिट होनी चाहिए, है ना। सो वी गेट दिस नेसेंट हाइड्रोजन हियर, एंड नाउ व्हाट विल हैपन? ये यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा और Br के जगह एक हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन। सो व्हाट प्रोडक्ट वी हैव? CH3 CH3 CH3। कुछ चेंज होगा क्या यहाँ पर? ये तीनों CH3 सैचुरेटेड है, वैसे ही रहेंगे। रिडक्शन किसका करेंगे? ये Br का, इसके जगह पे H आ गया और साइड प्रोडक्ट HBr बन गया। तो अब ये क्या बना आपके पास में? 1 2 3 and 4 कार्बन इज ब्यूटेन, बट सेकेंड कार्बन फिर से 1 2 3, so 2-methyl propane. What we get? 2-methyl propane is an alkane, है ना, it is an alkane. तो reduction of alkyl halide using zinc and hydrochloric acid will convert alkyl halide, है ना, alkyl halide into alkane. एग्जाम्पल देखा आपने, ये एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिया और ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। सही है। तो ये है फर्स्ट मेथड यूजिंग अल्काइल हैलाइड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन टू प्रिपेयर अल्केन्स। नाउ सेम अल्काइल हैलाइड, इसको अब एक और सिंपल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन मेथड। And that interesting and common method is what? By reacting alkyl halide with active metals. तो B part इसी का है ना, using active metals and alkyl halide,
using active metals and alkyl halide. करेक्ट. अब ये मेथड को देखो, बहुत इजी, बहुत सिंपल और कॉमन मेथड है, एग्जाम में पूछता ही है और इसको घुमा फिरा के एग्जाम में आता है ये. तो इसमें क्या करना होगा, RX लीजिए, फिर से आप अल्काइल हलाइड ले लो. अब एक्टिव मेटल यहाँ हम सोडियम यूज करते हैं, ट्वाइस Na सोडियम. This is again reacted with one more molecule of alkyl halide. So 2 moles of alkyl halide reacted with 2 moles of sodium. अब मैं फिर से लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पर ये alkyl halide लिखा, ये भी alkyl halide है, सिमिलर है ना. और यहाँ पर ये सोडियम मेटल लिया हमने. सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, पता है ना सभी को, वाटर में कांटेक्ट में आया तो क्या होता है फिर, सोडियम मेटल. नाउ दिस इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यहाँ हम यूज करेंगे. ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट मीन्स ईथर is a liquid, it is in dry state, means it does not carry any moisture or water in it. That's why we call it as dry ether. Are you getting it? तो थोड़ा सा अलग लगता है, जैसे ड्राई ईथर हमने बोल दिया, ड्राई बेंजीन, ड्राई क्लोरोफॉर्म, ड्राई अल्कोहल. तो ड्राई अल्कोहल मीन्स व्हाट, कि अल्कोहल जिसमें वाटर कंटेंट ना रहे बिल्कुल, है ना. वैसा ही ये ड्राई ईथर जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ऐसे इसमें अब हम इसको रिफ्लक्स करते हैं. रिफ्लक्स करना यानी कंडेंस करना, कंडेंसेशन यूजिंग वाटर कंडेंसर. तो सब सेटअप बनाते हैं, उसमें वाटर कंडेंसर लगा के हीट करते हैं. तो रिफ्लक्स करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब देखिए यहाँ पर हमें अल्केन मिलेगा. अब अल्केन मिलाने के लिए इजीली मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दूसरा मोल जो अल्काइल हलाइड का है उसको उल्टा लिखा था मैंने. तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R, ये देखिए ऐसा, प्लस अब जो बॉक्स ब्रैकेट में है वो क्या है, ट्वाइस Na एंड ट्वाइस X. तो ये ट्वाइस NaX मैंने लिख दिया. सोडियम हलाइड, X के जगह Cl, X के जगह Br, X के जगह आयोडाइड आप लगा सकते हो और साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा. नाउ दिस R सिंगल बॉन्ड R is what we call as higher alkanes. This is what we call as higher alkanes. In what sense it is higher? Let us see with an example. Very easy example. See this reaction, CH3 CH2 Br plus twice Na plus one more molecule of alkyl halide. Alkyl halide क्या लिया हमने, ethyl bromide लिया. यहाँ पर we have taken ethyl bromide is an alkyl halide. 2 moles of sodium metal. Now 2 moles of ethyl bromide चाहिए, तो इथाइल ब्रोमाइड को उल्टा लिखता हूं मैं, है ना, उल्टी चाल भी चलना है. तो ये Br CH2 CH3 सही है. कंडीशन ड्राई ईथर वो तो असेंशियल है और इसे रिफ्लक्स करना है. रिफ्लक्स फिर से बोल दूं एक बार मैं, वाटर कंडेंसर लगा के हीट करना है जैसे डिस्टिलेशन करते हैं. तो डिस्टिलेशन बाय यूजिंग वाटर कंडेंसर वी कॉल इट एज रिफ्लक्स. तो अब क्या हो गया, ये दूसरा मोल है आपका इथाइल ब्रोमाइड. नाउ यूज द सेम लॉजिक which we had seen in the previous one, and what is that, twice NaBr, twice NaBr. चलो यहाँ साइड प्रोडक्ट के लिए जगह है, twice NaBr लिख देता हूँ. अब मेन प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसको नीचे लिखेंगे. क्या दिख रहा है अपने को, CH3 CH2, ये एक R हो गया है ना, एक R हो गया, CH3 CH2. दूसरा R क्या है, फिर से CH2
CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. What it is? Butane. N-butane, normal chain of alkane butane, N-butane और सिंपल ब्यूटेन. देखिए अब मैंने जो बोला था हाइयर अल्केन, यहाँ दिख रहा है कि हमको हाइयर अल्केन. यस, वेरी करेक्ट. हमने क्या किया था, देखते रहेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ कुछ हाईलाइट करता हूँ, है ना. इसमें कितने कार्बन है? हियर वी आर हैविंग 2 कार्बन चेन. हियर अगेन अ 2 कार्बन चेन, बट दे आर सेपरेट एंटिटी. ये अलग है और ये अलग है. बट आफ्टर दिस रिएक्शन, after refluxing with sodium metal in presence of pure and dry ether, what happens? These 2 fragments, they join together and created a long chain of 4 carbon. पहले दो टुकड़े थे, ये एक टुकड़ा जिसमें 2 कार्बन, ये दूसरा टुकड़ा 2 कार्बन. अब उसको क्या किया, यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने से अब वो 4 कार्बन की एक सिंगल चेन बन गई, और वो 4 कार्बन यानी ब्यूटेन. तो ब्यूटेन इज हाइयर देन इथाइल, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इट एज हाइयर अल्केन्स. गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? यस, हाइयर अल्केन्स. तो R सिंगल बॉन्ड R यानी इट रिप्रेजेंट्स one alkyl group and the other alkyl group bonded through a single covalent bond, we call it as alkane. तो ये हो गया बेटा using active metal like sodium, है ना. तो हमने सोडियम ऐसे एक्टिव मेटल यहाँ यूज किया है और उससे हाइयर अल्केन्स बना लिया. करेक्ट है, इतना तो समझा. अब इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स सिंथेसिस. वर्ड्स सिंथेसिस. तो वर्ड सिंथेसिस आप याद रखेंगे क्या होता है वर्ड सिंथेसिस में. अल्काइल हैलाइड रिफ्लक्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गेट हाइयर अल्केन, and we call this as word synthesis to prepare higher alkanes. अब इसी रिएक्शन में यूजिंग एक्टिव मेटल में एक अलग तरीके से इसको यूज करेंगे. अब एक्टिव मेटल अब यूज करेंगे यूजिंग मैग्नीशियम मेटल. यूजिंग मैग्नीशियम मेटल. अब मैग्नीशियम मेटल कैसे यूज करेंगे इसको समझेंगे. हमने यूज तो क्या करना है, अल्काइल हैलाइड. फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल, तो क्या करते हैं, पहले अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिफ्लक्स करते हैं. और यहाँ भी कंडीशन वही, प्योर एंड ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट. तो ईथर एज ए सॉल्वेंट इट ऑलवेज has to be dry when reflux with alkyl halide. अब मैग्नीशियम क्या है, इट इज अ बाइवेलेंट, है ना. तो बाइवेलेंट होने से क्या होगा, मैग्नीशियम कम्स बिटवीन Rx and forms RMgX. RMgX. and this RMgX को अगर आप नाम देना चाहे तो अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड. जो दिख रहा है वैसा लिख दिया हमने, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड. लेट अस सी दिस. अब ये अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड कैसे हम यूज करेंगे और उससे अल्केन बना लेंगे. तो ये फंडा दिख रहा है, समझ में आ रहा है. क्या यूज करना है, मैग्नीशियम मेटल. अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल, प्योर एंड ड्राई ईथर रिफ्लक्स किया, आपको मिला अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. नाउ दिस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज called as Grignard reagent. It is called as Grignard reagent. तो इनडायरेक्ट तरीके से अब हम बनाने वाले हैं अल्केन्स यूजिंग मैग्नीशियम मेटल. तो बेटा क्या हो रहा है, हमने लिया अल्काइल हैलाइड
उसे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिफ्लक्स किया, हमें मिला अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज नोन एज Grignard reagent, a special type of reagent which in turn provides alkane to us. So let us see this alkyl halide. ये लिया अल्काइल हैलाइड, उसको मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिफ्लक्स किया, आपको मिल गया Grignard reagent, alkyl magnesium halide. Now if it is hydrolyzed, इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं. इट इज हाइड्रोलाइज बाय यूजिंग वाटर. अब जब इसे वाटर के साथ हीट करेंगे तो बहुत इजीली आपको दिख रहा है यहाँ से क्या होगा. मैग्नीशियम समझो जरा, मैग्नीशियम बाइवेलेंट है ना, दो वैलेंसी है मैग्नीशियम, एक वैलेंसी X के साथ और एक वैलेंसी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ. चलो जी, ये देखो मैं इसको MgXOH ऐसा लिखता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड. वैसे इसके नोमेनक्लेचर की कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई पूछा तो आप बोल सकेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, हाइड्रोक्साइड हैलाइड, बस सिंपल. अब बचा क्या, बॉक्स में तो मैंने लिख दिया MgXOH, बचा क्या R और ये वाला वाटर का H, RH इज अल्केन, RH इज अल्केन. हो गया ना सिंपल रिएक्शन. तो आपने क्या किया, Grignard reagent when heated with water it gives alkanes and a side product. अब ये साइड प्रोडक्ट हर बार फिक्स रहेगा, X के जगह बदलते जाएगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आएगा एंड दिस साइड प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी देयर. अब इसका एग्जांपल बना लेते बेटा. चलो एग्जांपल आप बोलो जरा मुझे. तो R is CH3, Mg मेटल तो वही रहेगा, X आप बदल सकते हो, लेट अस टेक आयोडाइड CH3MgI. इसका नोमेनक्लेचर भी हम लोग बोलेंगे अभी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, सिंपल. नाउ दिस इज heated with water, HOH. HOH ही लिखो, H2O लिखे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ता है ना. तो ये मैकेनिज्म पार्ट भी सीखते जाना है अभी हमको. अब क्या करेंगे, ये MgIOH अलग कर दो. MgIOH देखो यहाँ पर मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड, MgIOH है ना. मैंने कहा ना बस इसको चेंज करना और ये बाइवेलेंट होने से हर बार यही प्रोडक्ट आएगा. अब क्या बचा यहाँ पर, CH3 और ये H यानी CH4. CH4 हो गया आपका अल्केन, that is methane. So we get here alkane by using Grignard reagent and heated with water. एक एग्जाम्पल बन गया बेटा. दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Cl plus HOH. चलो जी, क्या करें यहाँ से. अभी तो हमने इसको सिंपल लिखा अल्काइल हैलाइड, हमें मैग्नीशियम लगाना है तो इसके बीच में मैग्नीशियम लगाते हैं, CH3 CH2 MgCl. अब ये क्या बना, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज टू बी कॉल्ड एज Grignard reagent. यहाँ वाटर लिया आपने, MgClOH, साइड प्रोडक्ट MgClOH, और देखिए अब क्या बचा, CH3 CH2H यानी CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 आपको मिला इथेन. So this is what the second method of preparation of alkyl halide using active metal. तो from alkyl halide using active metal है ना, using active metals. और एक्टिव मेटल्स में दो देखे हमने, एक सोडियम देखा और एक मैग्नीशियम देखा. लेकिन मैग्नीशियम में पहले हमने क्या बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इस तरह से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने वाटर के साथ हीट किया तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्केन मिला. सो दिस इज व्हाट द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. So we will continue in the next class. Thank you so much.